Is today's session is regarding to malware analysis and disappearances, right? Yes, today's session is related to malware analysis and digital forensics. We are not going to talk about a lot about digital forensics because many of you are beginners, so we're going to talk about malware analysis today. It won't be like that much of high tech that you guys won't be able to understand. It would be like something you can understand, but it sure would be something new. I mean, it would be something for you, yeah, that you can learn. Like, not something every day you learn in books from YouTube or something. I mean, I will try my best to make it unique and will sure provide you the links of the content I'm going to use here. Let's start the class since we have uh, 12 members already. So, it is me, Huzafa Tahir, and I am from Pakistan. I'm instructor at White David 23. So, in today's class, we're going to talk about malware analysis, which is an interesting field that intrigued me a lot when I started my career in cybersecurity. So, if you guys has any question related to me or you wanted to ask me, please, I'm here to answer. Anyone? Is today's session is regarding to practical? Yes, it is related to the practical application of whatever we are going to learn today. So if you guys are interested in learning the practical knowledge, then you guys are welcome. And if you guys are like wanted to learn it just the theory part, you guys can still learn about the theory. Malware analysis is not only about like going straight into the work and like uh, going reckless. We're going to deal with malwares. We have to be patient. We have to learn before executing any kind of malware. Today we're going to talk about static analysis. That doesn't require any kind of running the malware or like executing it. It just talks about what can you learn about the malware without touching it, like just by looking at it. This is called the static analysis of malware. So we're going to talk about the static analysis only. And this will be a practical hands-on session, like the stuff you're going to learn in theory, that would be practical. Like you will be able to learn a lot more from the theory than the practical, and that's my guarantee. Not going to scroll many of the slides or PPTs in front of you. That's not my thing. I work, I research, I make notes, and I'm going to show you my notes, and we're going to learn from my notes that I created in recent days. So, anybody has another question? By analyzing the malware, the rat creates a Trojan. We can analyze the Trojan and may find information about the attacker. If you successfully detect or decrypt all the parts of the malware, you can sure find out who created it in the first place. Sometimes we even leave our machines credentials or like our signatures or our addresses or some kind of stuff that can help the investigation team to track us back. Rehan Mafia, I can see your face in the camera. So, talking about me, I can speak pretty much of any kind of language. So, let me know what language are you comfortable with. I know English, I know Hindi, I know Urdu, I know pretty much any other language on this planet. So, not specifically, you can join from any account. Basically, I've made it open for everyone. It's like no one has to ask for join, anyone can dial in. Well, to talk about my experience, I have like 6 years of experience in malware development and reverse engineering. I've done MSAC, REMAC, I've done Google Cybersecurity Professional as a junior certification. I'm currently pursuing CPDS, CWEE, and CJS, CJCA.
So, uh, this is my experience. Will we do practical or only theory? Well, I don't call it theory. It's not gonna be a PPT slide. I'm not gonna teach you from PPT. We're gonna learn from the practical knowledge, more like the notes. Okay, once you should use more language that doesn't hurt anyone's feelings or anyone's eyes. Especially don't try to disturb the decorum of my class. Oh, that's very good. Munch, try to behave yourself, okay? I don't want to hear another piece of abuse coming out of you. What I want is, I won't even think twice before kicking anyone out who tries to disturb the decorum. I respect you all, and I deserve respect in return. Well, how many of you guys have taken my previous class? Well, you should be thankful that I'm not using any kind of accent like British or American, to be honest. Well, to make things more difficult, I can use French or like Arabic. That would be too difficult for you guys to understand. मैं हिंदी में ही आज आगे तक अ, करता रहूंगा सब कुछ explain. तो मुझे नहीं लगता कि चिंता कोई कारण होगा किसी के पास. मुझे ऑलमोस्ट सारी ही लैंग्वेज आती हैं. मेरे स्टूडेंट पृथ्वी के हर कोने से होते हैं तो मुझे हर तरह की जुबान सीखनी पड़ती है. इन डिजिटल फोरेंसिक्स हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था वैसे. हम्म. तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं. मैंने आप सबके नोट्स बनाए थे जो मैंने आपसे शेयर भी किए थे. मैंने इसका लिंक चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे मेरा यूजर नेम वापस मिल गया. ओके. मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आशा है कि आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो. तो क्या सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Okay, Ratish, you have a question. If you want, you can ask me. Ratish, okay, मैं आपका हैंड ओवर कर देता हूँ. Sir, as a beginner, what is the best path to learn cybersecurity? We will discuss unrelated things in the end of the class. Uh, जितनी भी आप लोगों की इससे हटके क्यूरीज हैं, हम उनको बाद में आंसर करेंगे. अभी के लिए हमारा फोकस होगा अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है मैलवेयर एनालिसिस. हमने विंडोज इंटरनल्स को मुझे एक दफा आप लोग याद करवा सकते हैं जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ पर एंड किया था. हमने पिछली क्लास में कहाँ पर समाप्त किया था, को बता सकता है?
where we ended last time. Anyone knows the last topic we discussed? DNS tunneling. No, no, not the one in Hack the Box meetup. Not the one in Hack the Box meetup. Basically, I was talking about the last masterclass. This related to malware analysis. Not our ones. I'm Mohammed Mazhar. It's not the one we are talking about in our regular classes. It's the other one. Okay, well, I would start today's class from the point onward, which is going to be static analysis on Linux. Well, this is an article written by me. You guys can read it and you guys can follow along with me. This is the article link I would be sending you guys in here. You guys can read it out and can follow along with me. Coming to the point, we can see that welcome to the workshop. Grab a cup of coffee or something stronger, like whatever you guys are interested in. This is just a welcoming note from me. So today we're gonna talk about the static analysis. What is static analysis? You got a malware on your WhatsApp. You're not gonna run it. You're not gonna click on it. Just by looking at it, what can you get to know about the malware? One thing is sure that this friend of yours who's sending you an APK would only send you a malware. He cannot be too good to send you an actual WhatsApp Pro subscription. Like there isn't something like WhatsApp Pro. So you obviously know it's a malware. So what's the next thing you're gonna do? You're gonna do is you're gonna actually look into it. And the meaning of looking into it means that you are going to know how was it created, what is the backend, what is the address, and what is the signature that you can use to identify the malware. So the next time your friend sends you a malware, your WhatsApp will automatically ban him, or sorry, block him, to be more easier for you guys to understand. So हाँ मैं हिंदी में बोलने वाला था. मैं दोनों भाषा में बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं किस भाषा में बोल रहा हूँ. तो अ, अंग्रेजी भाषा में तुम लोग सुन चुके हो सब. अब मैं बताता हूँ तुमको हिंदी में. ठीक है. सोचो कि तुम्हारे दोस्त ने आकाश ने तुम्हें व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप प्रो की ऐप भेजी है और वो कह रहा है कि इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो अपने फोन में. तो तुम लोग क्या करोगे? उस पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लोगे? नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी. होगी कि नहीं? कोई इतना मूर्ख है यहाँ पे? कोई आप लोगों में से कोई ऐसा हो बंदा जो कहता हो भाई मैं इतना मूर्ख हूँ कि मुझे कोई व्हाट्सएप की प्रो भेजेगा व्हाट्सएप के ऊपर और मैं उसे इंस्टॉल कर लूंगा अपने फोन में. हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वही दोस्त आपको सुबह सुबह ला के दिखा रहा था कि देखो मैंने इसका फोन हैक कर लिया. तो बिल्कुल एक चीज तो मैं बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इसने मुझे हैक करना है. तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा. मैं तो उसे बिल्कुल क्लिक नहीं करूंगा. लेकिन अब क्या आपके दोस्त को जाने दिया जाए ताकि वो बार बार आपको कोई ना कोई ऐप ऐसी सेंड कर दे? नहीं. मैं अपने व्हाट्सएप को अपग्रेड करूंगा. अपग्रेड कैसे करूंगा कि मैं उसमें डिटेक्शन लगाऊंगा कि जब भी इस तरह की कोई फाइल आए, चाहे उसका नाम व्हाट्सएप प्रो हो, चाहे उसका नाम फेसबुक प्रो हो, चाहे उसका नाम इंस्टाग्राम प्रो हो, जैसे ही वो मेरे फोन में आए और मेरे फोन को अपने आप पता लग जाए कि ये तो मैलवेयर है और वो उसको फौरन से आपके दोस्त को ब्लॉक कर दे ऑटोमेटिकली.
लेकिन वो पता कैसे लगाएगा बगैर उसे रन किए? यानी जब तक वो फेसबुक प्रो की ऐप को इंस्टॉल नहीं करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि ये तो मैलवेयर है? किसी के पास कोई अच्छा जवाब हो इसके लिए? आप सब अपना माइक खोल सकते हो। मोहम्मद मजहर का ने जो जवाब दिया है प्रश्न का वो बिल्कुल ठीक था। यही है कि आप उसके बारे में स्टैटिक एनालिसिस करते हो। स्टैटिक एनालिसिस आप कैसे करते हो? उसकी फाइल टाइप को जान के, उसकी फाइल हैश को जान के, उसकी स्ट्रिंग्स को जान के, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को जान के कि किस टूल का उसने इस्तेमाल किया है डेटा को इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, किससे वो बातचीत कर रहा है आपके फोन के अंदर, असेंबली कोड क्या है उसका, आप उसे रिव्यू कर सकते हो, रॉ लैंग्वेज क्या है उसकी। यहाँ पर आपके पास ये एक पिक्चर है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि उसने एक इन मैलवेयर को इनपुट में लिया है, उसकी फाइल टाइप देखी है, उसका फिंगरप्रिंट देखा है, फिर उसकी पैकेट को डिटेक्ट किया है, उसकी स्ट्रिंग्स को एक्सट्रैक्ट किया है, उसके पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल के जो हेडर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ली है, उनको क्लासिफाई किया है और फिर डिटेक्शन के रूल्स उन पे अप्लाई किए हैं। यहाँ तक किसी को मेरी बात समझ में ना आई हो, वो हाथ खड़ा करे। और अब हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका बाद में, तो परेशान नहीं होना किसी ने भी। फेज वन क्या है इसमें? सबसे पहला फेज है कभी भी लेबल पे ट्रस्ट नहीं करना। यानी अगर उस पे व्हाट्सएप लिखा है तो जरूरी नहीं कि वो व्हाट्सएप हो। ठीक है? क्या पता व्हाट्सएप के अंदर असल में बॉम्ब पड़ा हो। कितनों को पता है कि बॉम्ब नहीं होगा? वेल, पता लगाने के कई सारे तरीके हैं, जिस तरह से हमारे पास एक वायरस है, वॉनाक्राई। वॉनाक्राई के बारे में कौन कौन जानता है? अहमद रजा आप नहीं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले से वो नहीं बताएंगे। अंकित, अनिकत, नस्कर, प्लीज अपना माइक ऑन करें और बताएं कि ये रैनसमवेयर वानाक्राई वाला कौन सा है। ये वानाक्राई कौन सा रैनसमवेयर है? प्रश्न का जवाब दें कोई भी। ठीक है, कोई अनिकत के अलावा कोई और बताना चाहता हो? हाँ, फेमस तो ये है, यानी सबसे ज्यादा आसान और जाना जाने वाला मेलवेयर यही है। समय मुदस्सिर आपने नहीं बताना, चुप रहिए। जिनको मैंने सिखाया है उनसे तो मुझे जवाब मिल ही जाएगा। राहुल खन्ना, आयुष कुमार, आप अपना माइक खोलें और बताएं। आयुष कुमार, ये चीज याद रखें कि जब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कोई प्रश्न आपके पास आएगा, तो आपने मुझे जवाब माइक खोल के देना है। ठीक है? किसी भी तरह का उत्तर जो आप अपने चैट में देते हैं वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? Sir, may I? जी। Sir, actually, WannaCry is actually a ransomware which is associated with like an eternal blue, where it is targeted only for Windows type of machines. So it is allegedly stating that somewhat as I have heard it, it is from North Korea. ओके, लेकिन अभी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज करना पड़ा है एक गूगल,
या चैट जीपीटी? क्या इनमें से दोनों में से आपने कुछ एक यूज नहीं किया? नहीं सर, I just remember from my memory. नहीं, ये आपकी मेमोरी नहीं थी, कोई डाटा ज़्यादा No sir, एक्यूरेट था। no sir. Actually, I have done this a lab called malware analysis in TryHackMe. So हम्म। when I'm just going around, I just got over that, sir. ट्राई हैकमी की मेलवेयर एनालिसिस की लैब में ये सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज डेटा में नहीं लिखी हुई, No, जहाँ sir. तक बात है। Not in TryHack, not at the same thing. But when I was doing with my friend, he said this thing to me. Like we used to do those things and all. आपका दोस्त गूगल में काम करता है क्या? Nahi, sir. He's a and like he's just a student still studying engineering. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक टीचर अपॉइंट हूँ तो इसका मतलब ये कि इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई किया है कि मैं वाकई हैकर हूँ कि नहीं। तो अगर अब मुझे काम आता है तो मेरे साथ झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग झूठ बोलते हो और मुझे पता चल जाता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो उत्तर चाहे दो या ना दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ मत बोलना मेरे से दोबारा। नहीं, जो भी है, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगी। इट वाज नॉट नेचुरल। कभी भी ऐसे नहीं होता। जी मोहम्मद एहसन। सर मैं बता सकता हूँ? नो, यू कैन नॉट। आपको पता है, उस बारे में मुझे भी पता है कि आपको पता है रैनसमवेयर क्या है। मैंने वानाक्रे के क्राई के सैंपल्स आपसे शेयर किए थे। सर ये रैनसमवेयर वही है ना जो फाइल को डिक्रिप्ट कर देता है और पूरा सिस्टम को, मींस अगर इनक्रिप्ट का अगर किसी के पास इंस्टॉल कर लिया कोई किसी ने, तो की जो होता है वो अटैकर के पास होता है। आपने काफी हद तक सही जवाब दिया है। कोई भी रैनसमवेयर है उसके अंदर एक लॉजिक यूज होता है जिसे हम कहते हैं इनक्रिप्टर। इनक्रिप्टर लॉजिक क्या करता है, ये आपके तमाम फाइल्स को, आपके तमाम कीमती डेटा को, आपकी तमाम वैल्यूएबल डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, एक ऐसी इंक्रिप्शन की के साथ जिसका आपको पता नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है कि वो सिंक्रोनस इंक्रिप्शन होगी या एसिंक्रोनस इंक्रिप्शन होगी? एसिंक्रोनस सिस्टम होगी सर, बट आंसर मेरा सही नहीं है, बट वो फर्स्ट वाला जो आपने बोला वही है एसिंक्रोनस इंक्रिप्शन होगी। शायद, मेरे ख्याल से। ना एसिंक्रोनस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ना सिंक्रोनस नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होती है। जी नवंत नवंत। Sir, in I understand what mean by synchronous and asynchronous, but how is it implemented by a program? Like how we are going to implement it in a program, sir? Actually, when you're using C or that type of languages, I don't know that logic regarding. Is it okay if you can explain, or if it is not appropriate for this course, I can you can skip that part. Yes, it is, like it is well detailed, and if the institute supports a malware development class, we will learn that in that. But for now, it is like an extensive thing. It is a complete algorithm that, or like a snippet that you can integrate into a program. एनक्रिप्टर के लिए आपको बहुत लंबी लाइब्रेरी थोड़ी प्रॉपर लाइब्रेरी बनानी पड़ती है, या आप किसी कोड के अंदर स्निपेट के तौर पे एम्बेड भी कर सकते हो। बट अगर हम इसे प्रॉपरली स्टडी करना चाहें तो इनक्रिप्शन इनक्रिप्टर्स के अंदर इनक्रिप्शन एक तरह की नहीं होती। So if we are talking about a simple kind of encryptor, we can just code it into it, like convert it to base64 or calculate it into a specific hash or something. Like that's good. That's good from our side. We can use OpenSSL for that as well. But for here, this course, this is not mandatory, and it would be a little too much if we discuss it right now. Okay, sir. Thank you so much. MITM तो नहीं, दुर्जोय सहा, कहीं आपने MITM तो नहीं जिक्र किया इसमें? Use their MITM technique.
ओके, हम कोर्स पर फोकस करते हैं। यहाँ पर उसने आपके सामने एक सैंपल खोला है WannaCry का, देखने के लिए कि उसके अंदर चल क्या रहा है। उसमें उसने जानने की कोशिश की कि इसका फाइल टाइप क्या है। तो फाइल टाइप जानने के लिए उसने कैसे इसको जाना, उसने सबसे पहले एक लिनक्स की कमांड यूज की जिसका नाम था फाइल, और उसने आगे फाइल का पाथ दिया कुछ ऐसे। तो आइए चलिए हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मैं आपके सामने एक वर्चुअल मशीन ओपन करता हूँ। ये मेरी कंप्लीट स्क्रीन है, और ये मेरे पास वर्चुअल बॉक्स है। ये मैं वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट करता हूँ अपना, और मेरा वर्चुअल बॉक्स पावर अप हो रहा है। To be very honest with you guys, I use a Linux based virtual box. So this is just a virtual machine in which I've kept like samples which we can analyze in this session. सर मेरे एक आउट ऑफ क्वेश्चन था इसी का रिलेट में। जी पूछें, क्यों नहीं। मतलब यहाँ पे मैंने काफ़ी जॉब पोस्ट वगैरह देखी है, ठीक है? तो उसमें भी मालवेयर एनालिस्ट जो पूछते हैं वो लोग वहाँ पे आता है जॉब पोर्टल पे। तो इस सिमिलर हो रहा है या कुछ इसमें जो रियल वर्ल्ड में कुछ अलग होता है? जैसा अब आप अभी बनाएंगे एनालाइज करेंगे सारा लाइक रियल वर्ल्ड में फॉर भी ऐसे ही होता है। रियल वर्ल्ड में भी यही टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगी, इससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। जो चीज़ आज आपको मैं इस क्लास में करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यही देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये देखो, मैंने भी क्या किया है, मैंने एक कमांड दी है फाइल की। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करूं तो आप कुछ इस तरह से मेरी स्क्रीन को देख सकते हो, ऐसे। तो मैंने क्या किया है, मैंने फाइल की कमांड दी है और आगे फाइल का नाम लिखा है। तो ये मेरे पास WannaCry का एक सैंपल है। ये WannaCry की हैश है बेसिकली। तो मैंने क्या किया है, मैंने WannaCry की फाइल को इसके ऊपर डिटेक्ट किया है, जिसमें उसने मुझे बताया है कि ये PE है, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल 32, और ये एग्जीक्यूटेबल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। तो ये विंडोज के लिए मैलवेयर बना है। अब हम आते हैं अगली कमांड के ऊपर। स्टैटिक एनालिसिस में आगे हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्ड विंडोज टैग। अगर हमने अपने हाथ ज़्यादा गंदे करने हैं तो हम इसके अंदर जाके देख सकते हैं। हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं पीई बेयर। क्या आप लोगों में से कितने लोगों ने अब तक नाम सुना है पीई बेयर का? मुदस्सिर अली, आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये अभी आपने बताया कि जो है वो जी काफी मुदस्सिर अली, आप जो सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। सभी आवाज जी मुदस्सिर। हेलो ओके मुदस्सिर, आप काइंडली शोर से साइड पे होकर फिर पूछिएगा। ओके, हम आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। आई वुड जस्ट memorize that you guys haven't discussed about it yet. तो पी बेर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप इसकी हेडर्स वगैरह को एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी उसने एक हेडर खोला है जिसके अंदर उसे नजर आया है एक मैजिक वर्ड, जो उसने यहाँ पता लगाया है। मैजिक वर्ड कहाँ पे शो होते हैं, आपको यहाँ पर शो होते हैं। उसने हेक्स टर्म का यूज किया है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हम भी यहाँ पर सेम टूल को यूज करेंगे कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं, ओके जस्ट अ सेकंड।
ये हमारे पास हेक्स डंप आ गया, और आगे हमने इसके साथ इसका फ्लैग दिया है। ये हमारे पास फाइल नेम आ गया, ये उसने उसका हेक्स कोड निकाल के दे दिया है हमें। तो अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल अप करें तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसके मैजिक वर्ड्स ढूंढ लिए हैं। ये हैं इसके मैजिक वर्ड्स, कुछ ऐसे। यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक मैलवेयर है, यानी एक एक्टिव मैलवेयर है। ये एक WannaCry का सैंपल है जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। अभी तक हमने इस बिन को रन नहीं किया। इस बाइनरी फाइल को रन किए बगैर हमें पता चल गया है कि ये विंडोज के लिए बनी है, और इसका फॉर्मेट क्या है, इसका हेक्स डंप क्या है। हमें यहाँ पर इसका हेक्स डंप भी नजर आ रहा है। तो हम अब तक काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल चुके हैं इसके बारे में। अगर हम मजीद इसको स्टडी करें तो हम जानते हैं कि 45A क्या है। इसका मतलब है MZ। MZ क्या है? ये उस बंदे का नाम है जिसने MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम के ऊपर इस मैलवेयर को, यानी सॉरी, मैलवेयर के लिए एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट को लिखा था, मार्क जी बाइकोस्की। तो ही वाज द लीड आर्किटेक्ट इन MS DOS एंड इट इज अ स्टैम्प जो कि विंडोज के अंदर अभी तक मौजूद है। इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू हिम। सो ये ऐसी चीज इसकी सेंस नहीं बनती, बट ये है। आगे हमने फाइंड आउट करना है मैलवेयर के फिंगरप्रिंट्स क्या हैं। मैलवेयर के फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं उसकी MD5 हैशेस, जैसे कि SHA-1, SHA-256। हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम इसे पता लगा सके कि मैलवेयर किस टाइप का है। जी, काजी साहब, अ, शादाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी जी एट द मैं एंड ऑफ? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी पहले से ही, तो बेफिक्र रहें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। काइंडली इस तरह क्वेश्चन से मुझे डिस्टर्ब ना किया करें क्लास के दौरान, वरना मेरे ज़हन में एक चीज़ होती है, मैं बताने वाला होता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ उसके बारे में। तो इसमें आपका नुकसान है। ओके, तो क्यों ना हम इसको टेस्ट करके देखें एक दफ़ा। हम यहाँ पे फाइंड करते हैं SHA-256 का सम। तो चलिए SHA-256 का सम निकालते हैं। और यहाँ पर आएगा हमारा फाइल नेम। तो हमारा फाइल नेम क्या था, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपना फाइल नेम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने हमें निकाल के दी है इसकी SHA-256 हैश। तो इसका नाम, मतलब इसका जो नाम था वही इसकी हैश थी। तो क्यों ना हम इसकी हैश से पता लगाएं कि हम इससे क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक मैलवेयर था, हमें नहीं पता कि ये कौन सा मैलवेयर है। मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक मैलवेयर है। हमने अभी तक पता लगाया कि ये विंडोज पे रन होता है, ठीक है। हमने पता लगाया कि इसके अंदर हैक्स डंप में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अब हम पता लगाएंगे कि ये मैलवेयर है कौन सा। तो हम उसके लिए यहाँ पर अपने पास ब्राउजर ओपन करेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे वायरस टोटल। हम वायरस टोटल की वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर सर्च पे आएंगे। यहाँ पर सर्च में आने के बाद हम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो हमने वहां से हैश कॉपी की थी, हमने वो यहाँ पे SHA-256 हैश यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब हम इसे करते हैं सर्च। देखते हैं इसके सर्च रिजल्ट्स में हमें क्या मिलता है। तो ये हैं इसके सर्च रिजल्ट्स। हमें यहाँ पता लग गया कि इस मैलवेयर का नाम WannaCry है। इस WannaCry फैमिली के ऊपर हम जरा और डिस्कस करते हैं। ये CVE 2017-0147 के ऊपर मौजूद है। ये एक एग्जीक्यूटेबल है विंडोज के लिए, जो एक्सप्लॉइट में शामिल होता है। और हमें इसके CVE के बारे में पता लगे यहाँ से। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और इन्फॉर्मेशन में हम इसकी डिटेल्स में आ जाते हैं। हमें इसकी डिटेल्स में क्या मिलता है, इसकी MD5 हैश, इसकी SHA-1 हैश, हमें इसकी SHA-256 हैश मिल जाती है, हमें इसकी V हैश मिलती है, ऑथेंटिक हैश मिलती है, इंपोर्ट हैश मिलती है, रिच PE हेडर हैश मिल जाती है,
SSD मिल जाती है, TLSH मिल जाती है, फाइल टाइप मिल जाती है, मैजिक इसके क्या है हमने ये भी फाइंड आउट किए थे, और TRID, डिटेक्ट, ETZ, हमें हर तरह का डाटा इसके बारे में यहाँ से मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी 256 हैश निकालने से। श्योर। तो मेरे ख्याल है कि अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि हम मैलवेयर एनालिसिस से एक छोटे से मैलवेयर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एंड दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। आगे चलते हैं फाइल हैश लुकअप क्या होती है। यहाँ पर देखें जिस तरह हमने निकाला था, मैंने यहाँ आर्टिकल पे भी मेंशन किया है कि हम किस तरह इसकी फाइल हैश निकाल के सबमिट करवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसे। इसमें हमने फजी हैश यानी इंपोर्ट लॉजिक हैश को निकाला था। इंपोर्ट लॉजिक हैश किस तरह काम करती है, क्या कोई यहाँ बता सकता है? बेसिकली ये एक इंपोर्ट फंक्शन होता है जिसके मुताबिक उसमें एक हैश जनरेट होनी होती है, तो आप उस हैश को आपस में कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन के लिए भी यूज होती है दो मैलवेयर्स के दरमियान में रिलेटिविटी देखने के लिए या उनके अंदर रिलेटेबिलिटी देखने के लिए। इस इंपोर्ट हैश से क्या होता है कि आप एक जैसे दिखने वाले कई मैलवेयर्स को जो डिफरेंट फॉर्म में हैं, उन सबको डिटेक्ट कर सकते हो एक साथ एक सैंपल के ऊपर। इसमें आती है SSD, जिसे हम कहते हैं फजी हैशिंग। ये फाइल जो होती है उसके अंदर जो है ना ब्लॉकेज के अंदर यानी सेगमेंट्स में पाया जाता है ये सैंपल। और इसकी अगर एग्जांपल दें तो उसने यहाँ पे potato.exe की एग्जांपल दी है जिसमें 99% उसने मैच देखा है svc host.exe के साथ। हम इसे परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दो तरह के मैलवेयर सैंपल्स नहीं है, लेकिन अगर आपने दो मैलवेयर सैंपल्स को कंपेयर करना है कि वो कितने आपस में सिमिलर हैं, तो आप इस कमांड के थ्रू उन्हें कंपेयर कर सकते हो, ssdeep के थ्रू। यहाँ पर उसने कमांड लिखी है ssdeep, और उसके बाद उसने फ्लैग लगाया है -pb, और आगे उसने स्टार के बाद potato.exe, और आगे उसने लिखा है मैचेस, और फिर आगे उसने अगले सैंपल का लिखा है। और इस तरह से उसे पता लगा है कि इसकी रिलेटिविटी या सिमिलैरिटी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने टर्मिनल के ऊपर एक कमांड रन की है ssd ransomware wannacry.exe, और ssd उसके बाद उसने कंपैरिजन के बाद देखा इसकी हैश क्या है, उसके बाद उसने हैश को कंपेयर किया। तो हम इसके थ्रू कंपैरिजन भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग एनालिसिस क्या होते हैं? स्ट्रिंग एनालिसिस के लिए हम फ्लॉस यूज करते हैं। हम फ्लॉस से किस तरह स्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं, चलिए आइए इसे परफॉर्म करते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे पास फ्लॉस इंस्टॉल नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो मुझे पहले फ्लॉस अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, हम इसकी जगह वैसे स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं जितना मेरा ख्याल है। और अगर हम सैंपल आगे लिखें तो ये उसने मुझे यहाँ पे इसकी सारी स्ट्रिंग्स निकाल के दे दी हैं। तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग एनालिसिस। तो हम स्ट्रिंग्स की कमांड से भी इसकी स्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसके लिए हम फ्लॉस भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, VNRY WannaCry। तो हम स्ट्रिंग एनालिसिस से काफी कुछ पता लगता है इसके बारे में। इंडोनेशियन WannaCry, लैंग्वेजेस और हर तरह की जो स्ट्रिंग्स हैं उसने सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कर दी हैं। ये देखें, insufficient memory, buffer error, incompatible version, इसमें जिस भी तरह की स्ट्रिंग्स थी उसने सारी की सारी निकाल दी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एनहांस यूज किया गया, RSA और AES क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन प्रोवाइडर यूज किया गया, यानी इसे ऑब्फुस्केट भी किया गया था। तो हम यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन जान चुके हैं अभी तक इसके बारे में। ये देखें, अब हमें यहाँ पे एक लिंक भी मिल गया है। हम इस लिंक को अगर ओपन करें तो हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सेंटर 2.0 की सर्विसेज भी यूज कर रही है। यहाँ पे देखें हम पीसी के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये इसकी सारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है जिस पे ये कंपाइल हुआ था। ये इसकी स्ट्रिंग्स हैं अगेन।
ये देखें, राइट फाइल, क्रिएट फाइल, साइज ऑफ रिसोर्स, इसने काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें एम्बेड करके रखी हुई थी। तो आपके सामने हम एक लाइव मैलवेयर को भी एनालाइज कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने इसको पढ़ना। इसका रिच टेक्स्ट डाटा था ये। इसमें उसने सारे के सारे उसके जो रजिस्टर्स हैं उनको सबने ओपन किया है और यहाँ पे हमने रीड आउट कर रहा है। यहाँ पर किसी को कोई सवाल हो मेरे से अभी तक तो वो पूछ सकता है। मेरा एक सवाल है सर, अभी जैसे कि आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए बताया, अगर खुद से बनाना पड़े तो कैसे बना सकते हैं? बनाने के लिए हमारे पास एक सेपरेट कोर्स है मैलवेयर डेवलपमेंट का। बनाने में मैलवेयर बनाने में कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली अगर आप एक सी प्लस प्लस के अंदर कोड कंपाइल करते हो नॉर्मल डेव सी प्लस प्लस के साथ जो कि मैलवेयर एक्टिविटी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर ले तो वो एक मैलवेयर है। फोनिक है कि एग्जांपल कुछ ज़्यादा एडवांस मैलवेयर्स में शामिल होता है। लेकिन अगर आप बेसिक मैलवेयर्स पे आओ तो एक सिंपल सा की लॉगर जो कि आपके एक अटैकर है जिसने अपनी यूएसबी लगा दिया आपके कंप्यूटर में और आपको एक प्रोग्राम रन करने के लिए दिया है टीचर के पोर्टल को हैक करके। टीचर ने आपको कहा है कि उस प्रोग्राम को रन करो और देखो कि मैंने आपको क्या करने के लिए दिया है। आपने उस प्रोग्राम को रन किया लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर कुछ खास बात थी। उस प्रोग्राम में सिंपल सी ये स्क्रिप्ट थी कि उससे बैकग्राउंड में लेके जाए प्रोसेस को और बैकग्राउंड में ले जाने के बाद जितने भी स्ट्रोक्स हों उनको सेव करता जाए यूएसबी के फाइल पाथ के अंदर और यूएसबी के फाइल पाथ के अंदर वहां पे एक टीएक्सटी फाइल बन जाए जिसके अंदर वो सारे के सारे उसकी जो की स्ट्रोक्स हैं वो सबके सब सेव होते हैं लॉग्स के साथ टाइम स्टैम्प के थ्रू। तो ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैलवेयर है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जी, जी, हाँ। सेटिस्फाइड नहीं लगे आप इस जवाब से? नहीं, नहीं, मुझे समझ में तो आ गया है सारा कुछ जो आपने बताया, हम्म। बट ये चलो थोड़ा सा डेवलपमेंट में जाना एडिशन में थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। इमेजिन करें कि एक मेलिशियस एक्टिविटी है। की स्ट्रोक्स को सेव करना है बार बार एक अनोमली है। कई डिटेक्टर्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। खासतौर पर बिट डिफेंडर इस तरह की एक्टिविटी को मेलिशियस कंटेन करता है और उसको डिटेक्ट करता है और ऐसे प्रोग्राम को रन होने से रोकता है। अगर ऐसा एल्गोरिथम बिट डिफेंडर ढूंढ लेता है तो आप इसे ऑब्फुस्केट किस तरह कर सकते हो, यानी हाइड किस तरह कर सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑब्फुस्केशन। आप क्या करते हो कि आप इस तरह के सॉफ्टवेयर को, इस तरह की स्निपेट को हाइड करते हो एक और एल्गोरिथम के अंदर। यानी ये सारा जो स्निपेट है आपका, ये सारी जो लाइब्रेरी है इनक्रिप्टेड रहती है एक साइड पर। किस तरह से आप उसे इनक्रिप्ट कर देते हो एईएस या फिर एग्जॉस्ट के साथ। अब इनक्रिप्ट होने के बाद कई डिटेक्टर्स जो होते हैं, डिफेंडर्स जो होते हैं, वो उसे बाईपास करने में कामयाब हो जाता है मैलवेयर। जैसे कि विंडोज डिफेंडर, आपने देखा होगा कि काफी लोग उसे डिटेक्ट करने से कासिर रहते हैं। सॉरी सॉरी काफी मैलवेयर जो होते हैं वो उस पर डिटेक्ट नहीं होते। मैंने ये डाउनलोड कहाँ से किया था, ये मेरा अपना सैंपल है। एग्जिट टूल भी यूज कर सकते हो, एग्जिट डाटा भी निकाल सकते हो इसका। उसने यहाँ पे फ्लॉस यूज किया है। फ्लॉस इज लाइक गिविंग यू मच मोर कंसाइज रिजल्ट्स। उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। यहाँ पे उसने अनपैकिंग सूट को यूज किया है। उसने सिंपल स्ट्रिंग का कमांड यूज किया और यहाँ पे उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया है वहां से। exif की tool, olimeta command is better. Maybe olimeta command is better, but that is not practical on the side. उसमें इतना कुछ लर्न करने के लिए नहीं निकलता जितना फ्लॉस में इतना कुछ लर्न करने के लिए नहीं निकला। अगर आप लोग फ्लॉस यूज करते तो स्ट्रिंग्स नंबर बताता, काफी कुछ बताता, लेकिन ये सारा रिजल्ट वहां से ना निकलता। So there is a way that is easy, but there is a way where you can learn more. So this is the way you can learn more. हमारा काम है कि बस आपको आइडिया देना है। जब आप लोग एक प्रोसेस को सीख लोगे ना कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो यकीन करो मेरे से अच्छे सॉफ्टवेयर आप लोग मुझे रिकमेंड करना शुरू कर दोगे। यानी
इमेजिन करो किसी दिन मैं बैठा हुआ, मुझे किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि सर आपने हमारी क्लास ली थी, आपने ये टूल बताया था, देखें मैंने इससे बेहतर टूल ढूंढ लिया, मेरा भी भला हो जाएगा। हम्म यहाँ पर है हमारे पास एक और कमांड, ये है यूपीएक्स। बट यूपीएक्स जो अनपैकिंग सूट है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग far more advanced as compared to a normal one. ये था हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस फॉर लिनक्स। अगर आप लोग कहते हो तो मैं ये पढ़ा देता हूँ ये क्या चीज़ है। बेसिकली पैकर इन्फॉर्मेशन होती है, यूपीएक्स वगैरह ना, यूपीएक्स 0 यूपीएक्स 1 जो होती हैं। सो अगर आप लोगों ने पैकर्स को पढ़ना है तो फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। Can I see this class? Yes, you can see this class. Of course, this is publicly available, and if you're texting it in the box, you are already able to see this. तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि उसने बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। इसे एक्सप्लेन कर ही लिया जाए तो बेहतर है। कुछ मैलवेयर्स को होते हैं ना, इन्हें पैक किया हुआ होता है, यानी ऑब्फुस्केट करने की कोशिश की गई होती है। उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो एक्चुअल नेचर है ना, उसे छुपा दे। कैसे छुपा दे? उसे जिब्रिश करके। इसमें क्या होता है कि हम यूपीएक्स 0 या यूपीएक्स 1 इस तरह के लेबल देखते हैं यहाँ पे, इस तरह के लेबल्स, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता चलता ये मैलवेयर है किस तरह का, यानी क्या करता है। हमें क्या करना है, हमें इसे डिकम्प्रेस करना है, इसके सारे फ्लैग्स को। जैसे कि हम यहाँ पर यूपीएक्स की कमांड यूज करते हैं और इसके आगे अनपैक्ड सैंपल करते हैं और क्रेडेंशियल डॉट स्टीलर डॉट एक्जी करते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका जलवा दिखाता हूँ। ये है मेरे पास एक कमांड। अब यहाँ पर मुझे दो चीजें नोटिस करनी है। ये है मेरा सैंपल और ये है मेरा क्रेडेंशियल स्टीलर। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसकी एक्सटेंशन चेंज करनी है। मैं इसे बिन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मैलवे की स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करता हूँ और मुझे इसकी स्ट्रिंग एक्सटेंशन भी चेंज कर देनी है। इसके लिए क्या प्रोसेस है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ। Well, I don't know if it will work or not. Let's see what comes. तो ये उसने उसे decompress कर दिया। Okay, no pack reception, no pack by UPX. तो ये वाली हमारे पास जो सैंपल था, ये पहले से UPX में पैक नहीं हुआ था, इस वजह से हम इसे decompress नहीं कर सके। लेकिन अगर ये पैक होता तो हम इसे आज decompress कर देते। What if we change the flag? अगर तो मेरा कमांड ठीक है तो। ओके, मेरा कमांड वाकई गलत था। सर हमें क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? जी, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आई एक्चुअली फॉरगॉट द कमांड जिससे हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या मेरी कोई हेल्प कर सकता है मुझे बताने के लिए कि सही कमांड क्या है इसे कंप्रेस करने की, ताकि हम इसे पहले यूपीएक्स में कंप्रेस करें और बाद में इसको डीकंप्रेस करके देखें। यहाँ पे नवनाथ, आप लोग Sir, मुझे am I audible? जी, आप ऑडिबल हैं। मैं चाहूंगा कि आप किसी भी तरह से मुझे बताएं कि इस कमांड के साथ मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ, यूपीएक्स में पैक कर सकता हूँ। बेसिकली पैकर का इस्तेमाल करना है मुझे। Sir, I didn't understand that question. मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो कमांड बताएं कि जिसके साथ मैं इस मैलवेयर को, इस बाइनरी को यूपीएक्स में कंप्रेस कर सकूं पहले, ताकि बाद में इसे हम डीकंप्रेस करें और स्टडी करें कि यूपीएक्स में पैकर के थ्रू कंप्रेस और डीकंप्रेस होने से क्या फर्क पड़ता है। ओके, हमारे पास एक भाई ने, अब्दुल्ला जैगम ने, हमें एक छोटा सा आंसर दिया है जो कि बहुत सिंपल लगता है देखने में। तो चलिए इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या इससे हमारा मसला सॉल्व होता है। यही इनकी कमांड थी। ओके, एंड इट एक्चुअली वर्कड वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। देख के अच्छा लगा।
not compressible. Packed one file, file 0 वो ओके। तो चलिए अब हम इसे डिकम्प्रेस करते हैं। अनपैक 0 फाइल्स। क्या मुझे यहाँ पे को बता सकता है कि फर्क किस चीज से पड़ा है? कमांड तो आपकी ठीक थी, दैट वाज गुड, बट ये पैक नहीं होगी इस तरह से। पैक हुई है बट सही नहीं हुई। पहला मसला तो यहाँ पर है, कमांड इनकम्प्लीट थी करेक्ट बट इनकम्प्लीट थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्टडी करने वाला ये है कि फाइल जब आपने डिकम्प्रेस की तो उसे प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मिला। दूसरा मसला उसके अंदर ये था कि उसने फाइल को डिकम्प्रेस किया नहीं। किस वजह से? एक्सटेंशन का इशू था और कुछ फॉर्मेट्स का इशू था। क्या मुझे इस पे कोई मजीद रिसर्च करके बता सकता है, गूगल का यूज करके या चैट जीपीटी का यूज करके, कि क्या इशू था? मैं आपको इसका पूरा प्रॉम्प्ट जो है, कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करके यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इस सिलेक्शन को कॉपी करें, मुझे लगता है कि कुछ मजीद फ्लैग इसके लिए चाहिए होंगे। यूपीएक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। यानी ऑब्फस्केशन का पहला स्टेप है यूपीएक्स। तो आप लोग किसी भी तरह से हेल्प ले सकते हो, इस कमांड को प्रॉम्प्ट कर सकते हो, चैट जीपीटी को दे सकते हो, किसी भी तरह से इसके लिए आंसर निकाल सकते हो। मुझे ऑनेस्टली याद नहीं था कमांड कि मैं किस तरह से कंप्रेस कर सकता हूँ, सिवाय उसके जो मुझे अभी आंसर मिला है, यही वाला मेरे ज़हन में था अभी। तो उसमें भी एरर निकल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इसको देख ही लें। आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा मैं भी यहाँ पे रन कर देता हूँ। इधर ही रन किया जाए तो बेहतर है। लेट्स सी वेयर वी वेंट रॉन्ग। ओके, मेरा आंसर तो मुझे मिल गया है। ओके, हमारे पास एक और आंसर आया है, हम ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं। कोई मसला नहीं, इसमें कौन सी आवश्यकता है, ये लो। उप्स, लगता है फिर से एक मसला आया है। एक फाइल को पैक किया गया और एक ही हमारे पास एरर आया, पहले की तरह। मैं डीकम्प्रेस नहीं करने वाला क्योंकि ये पहले से डीकम्प्रेस थी, यानी इसे कंप्रेस करके ऑब्फुस्केट करने की कोशिश ही नहीं की गई। दिस इज द बिगेस्ट इशू। बाइनरी ओपन एंडेड फाइल है, उसे आप डीकम्प्रेस किस लिए करोगे, और कंप्रेस करोगे तो किस चीज को करोगे कंप्रेस? इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसे आप कंप्रेस कर सको या फिर आप उसे ऑब्फुस्केट कर सको। तो इस वजह से वो कंप्रेस नहीं हो रही है। अल्लाह वालों, बाइनरी है, क्या हो गया? आप गलत फाइल को ट्राई करें। जब हमने इधर नोट्स पढ़े थे तो उसके अंदर एक चीज क्लियर थी, उसने एक्सिस को किया था जो कि एग्जीक्यूटेबल है, पर बाइनरी उस तरह से एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। इन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है, रन किया जा सकता है, बट एज सिंपल एग्जीक्यूटेबल और एज फॉर्मल एग्जीक्यूटेबल वो परफॉर्म नहीं कर पाती। दिस इज द बिगेस्ट इशू इनटू इट। बात समझ लगी मेरी कुछ? यूपीएक्स और कंप्रेशन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मोस्टली लोग इसमें गलतियां करते हैं, और ये ऑब्फुस्केशन के अंदर आता है जो कि मैलवेयर एनालिसिस में काफी बाद में आता है। अगर मेरे मुताबिक आप लोग पढ़ो तो, मैं अगर आप लोगों को कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं यूपीएक्स आपको तब पढ़ाऊंगा जब आप लोग
तमाम डायनामिक और स्टैटिक एनालिसिस पढ़ चुके हो, उसके बाद आती है ऑब्फस्केटेड मैलवेयर्स। यानी पहले एक सिंपल मैलवेयर को आइडेंटिफाई करना सीखो और फिर आओ ऑब्फस्केटेड वंस की तरफ, क्योंकि ऑब्फस्केटेड में अब आपके पास इंक्रिप्शंस है, अब आपको उन्हें ब्रेक करना है, और दैट रिक्वायर्स अ सीरियस नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स टू बिगिन विद, क्योंकि बहुत सारी इंक्रिप्शंस आपको नहीं देखने मिलेंगी। जितना यूपीएक्स तो सिर्फ एक फॉर्मेट या एक टूल है, उसकी एक इंक्रिप्शन है। इस तरह से कई इंक्रिप्शन एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, और हमेशा यूपीएक्स की इंक्रिप्शन ही आपको देखने को मिलती है। ये तो हमारा अंदाजा था। जब हमने यहाँ पे फ्लॉक्स किया तो आपने देखा होगा कि फ्लॉक्स करने पे उसको वहां पे जिब्रिश डाटा देखने को मिला था, ना कि हमारी तरह। ये देखो, उसने स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया, हमारी तरह उसको सिंपल डाटा नहीं देखने को मिला। यानी हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, याद है? हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अम, हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ओके, ये देखो, ये हमारा रिजल्ट था। हमें यहाँ पर यूपीएक्स, यूपी1, यूपी2 इस तरह की कुछ चीजें मिली, लेकिन इसके डाटा में देखो इसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यूपीएक्स1, यूपीएक्स0, यूपीएक्स2, तो ये जिब्रिश डाटा है। तो जिब्रिश डाटा से रिकवर करने के लिए वहाँ पे यूज करना पड़ा था डीकम्प्रेस फ्लैग को। हमने यहाँ पे इसको यूज किया था, क्यों? क्योंकि ये पैकर से कंप्रेस फाइल थी, पैक फाइल थी, इसे हम कहते हैं पैक होना। ठीक है, तो ये था आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशन लर्निंग अबाउट मैलवेयर एनालिसिस यूजिंग द लिनक्स। और लिनक्स अकेली चीज नहीं है, हमने एक तरह से इसे परफॉर्म किया प्रैक्टिकली। अब एक तरह से परफॉर्म करेंगे आप लोग मेरे साथ साथ, किसी मैलवेयर सैंपल पे नहीं, एक नॉर्मल एप्लीकेशन के ऊपर। आप सबके पास कोई ना कोई एक्जी आपके डाउनलोड फोल्डर में पड़ी होगी, सबके पास है ना? कोई भी डाउनलोड कर लो, calculator.exe या कोई भी चीज, कोई एग्जीक्यूटेबल जो आपके पास पड़ी हुई हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। हम उसी पे एनालिसिस रन कर देंगे कि वो मैलवेयर है कि नहीं। कोई भी कर लो, कोई भी, लिटरली कोई भी। रूफस की एग्जी खोल लो, सबसे छोटी और सिंपल एग्जी रूफस की होती है। और ये वाले एनालिसिस आप अपने विंडोज पे करने वाले हो, इस वजह से आप लोगों ने मैलवेयर बिल्कुल नहीं चूज करना। कभी मैलवेयर को अपनी होस्ट मशीन यानी मेन मशीन पे रन नहीं करते, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपनी मेन मशीन में मैलवेयर एग्जीक्यूट कर दे? सोचने वाली बात है। हाँ, rufus.exe भी चलेगा। Process to finding malware is the analysis, is the process, is the how will learn easily। यार आप हिंदी बोल लो। माइक ऑन कर लो। जो जो मेथड है माने मैलवेयर एनालिसिस का जो मेथड है वो क्या सबके लिए एक होता है, अलग अलग के होता है? लिए एक होता है, यानी डिपेंड करता है आप किस तरह की चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो मोस्ट यूज मेथड है या बिल्कुल बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं जो आज की क्लास में डिस्कस किए जा सकते थे, मैंने वो आपसे शेयर कर दिए हैं। सब लोग बेसिकली काली लिनक्स ही यूज करते हो हैकिंग का नाम सुन के, ऐसा ही है ना? यानी सबने लिनक्स ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को जो कमांड समझ आ सकते थे वो लिनक्स के थे, तो मैंने इसीलिए लिनक्स के कमांड ही आपको सिखाए हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विंडोज के थ्रू मैलवेयर एनालिसिस करेंगे। जिनके पास लिनक्स नहीं वो विंडोज के साथ भी मैलवेयर एनालाइज कर सकते हैं, जिनके पास लिनक्स नहीं वो विंडोज के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि मैलवेयर कहाँ पे है, और वो भी स्टैटिक एनालिसिस ही होंगे। नहीं, लिनक्स में रन नहीं करवाना, कोई मैलवेयर रन नहीं करना, कोई मैलवेयर रन नहीं कर देना। ठीक है, कोई मैलवेयर रन नहीं करना, सिंपल वर्चुअल मशीन बना के उसमें मैलवेयर रन नहीं करना। मैलवेयर बाजार से या किसी भी ऐसी वैसी स्केची वेबसाइट से मैलवेयर डाउनलोड करके उसके ऊपर मैलवेयर एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि उसे एग्जीक्यूट कर दो पकड़ के।
डायनामिक एनालिसिस है, उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल चाहिए, इसके लिए प्रॉपर लैब सेटअप चाहिए आपको। जी कृष्णाकांत पूछें, क्या पूछना है आपने? पूछें। मैलवेयर कभी भी एग्जीक्यूट मेन मशीन पे नहीं करते, दैट इज वेरी स्टूपिड। कृष्णाकांत आपने कुछ पूछना था, आप पूछ सकते हैं। ओके, ये मेरा आज का टॉपिक था, स्टैटिक एनालिसिस ऑन लिनक्स। तो इसके अलावा आप लोग कुछ सीखना चाहते हो या कोई आपके क्यूरीज हो, अब आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और खुल के पूछ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। मालवेयर डेवलप करते कैसे वही सिखाओगे? मैं मैलवेयर डेवलप करना इस कोर्स में नहीं सिखाने वाला, सॉरी। अच्छा, रूफस ओपन ही नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। रूफस एक्सी ओपन ही नहीं हो रही, उसमें एरर आ रहा है। रुको जरा, हम अभी करके देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सॉरी अगर आपको लगे मैं ज़्यादा टाइम लूँगा आपका। ये हमारे रूफस पे, ये इसके डाउनलोड्स, ये मैंने रूफस की एक एक्सी डाउनलोड कर ली। सबसे सिंपल और बेसिक एक्सी इसी की है, ये देखो जल्दी से मेरे पास ये डाउनलोड भी हो गई है। ये मेरे पास कुकी वगैरह पड़े हैं, ये मैंने उठाई एक्सी, ये मैं इधर आया और यहाँ पर आकर मैंने इसी कर दिया पेस्ट। ये है मेरे पास रूफस की एक्सी, मैं इसे रीनेम करता हूँ और इसको रूफस एक्सी कर देता हूँ। ये रूफस एक्सी जो आपके पास थी। अब देखो जरा, हम इसके ऊपर एक स्कैन रन करके देखते हैं। स्ट्रिंग्स, ये देखो स्ट्रिंग्स तो निकाला है। यहाँ पर देखो ये है यूपीएक्स, ये है पैकर। अब हम यहाँ पर यूपीएक्स वाली कमांड एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपनी कमांड की तरफ, जो हमारे पास कमांड थी, ये वाली कमांड। ये है हमारे पास अनपैक्ड। अब हम इस पे स्ट्रिंग्स करेंगे। यहाँ से हम इसका नेम कॉपी कर लेते हैं और अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ से इसका न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, ये देखो जरा, इसमें वहाँ पर डॉट टेक्स्ट वगैरह आ गया, यूपीएक्स वगैरह चले गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये देखो जरा, ये मेरे पास एक रिजल्ट है और मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। ये देखो ये एक रिजल्ट है मेरे पास और ये मेरे पास दूसरा रिजल्ट है। तो यूपीएक्स इस तरह से काम करता है। नो सच फाइल, ओके उसने वो डिलीट कर दिया। नहीं, refresh.exe है तो सही इधर। ओ हाँ, मैंने तो डेस्कटॉप में खोली नहीं, सीरियस। ओके, सर ये देखो सिंपल रूफस में और इसमें कितना फर्क था। ये देखो, ये आपने अनपैक करने के बाद इसको देखा है और ये पैक हुई हुई एक्सी थी, ये जिब्रिश है और ये आपके पास रॉ है, ठीक है। ये दोनों में फर्क है, समझ आई? इस तरह का मैनुअल गलती। जिब्रिश मीन क्या होता है? जिब्रिश वो तरह का टेक्स्ट होता है जो आपकी इजीली अंडरस्टैंड ना कर सके। जिस तरह से जब आपने अभी
स्ट्रिंग्स को एनालाइज किया, तो आपने जो बीच में डॉट टेक्स्ट निकाले थे, ये सारे के सारे रजिस्टर टाइप की चीजें होती हैं जो आपको फॉर्मेट से मिल जाता है। आप इनको मजीद स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा इनके एक मीनिंग है, इन सबके पीछे एक टैक्टिक है। लेकिन UPX0, UPX1, UPX2, इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस चीजें हैं जो कि बेसिकली इंक्रिप्शन होती है इसलिए कि आपका सॉफ्टवेयर कोई भी पढ़ ना सके। सर मुझे जानना है कि कोई मैलवेयर ऐप लाइक SMS और APK वो सबका व्हाट्सएप हैक करता है, तो अ, जिसने बनाया है उसको फाइंड करना हो, तो अभी हमने देखा कि काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाली एक मैलवेयर से। अगर आपका जो मैलवेयर डेवलपर है वो मैलवेयर में इंफॉर्मेशन रख देता है या कहीं से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां से डिवाइस की मिल जाती है, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक बैक कर सकते हो। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो कई दफा ऐसा होता है कि मैलवेयर जो होता है एक स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर डाटा को सेंड कर रहा होता है, तो अगर आप पता लगा लेते हो किस सर्वर पर डाटा सेंड कर रहा है, तो आप उस सर्वर को ट्रैक करके वहां से पता लगा सकते हो इसका कंट्रोलर कहाँ पे है। Long time ago, I encountered a file with .msc extension and was given a symptom of a malware of creating a backdoor. Do you face like that file or had an analysis of that type? Specifically, मैं .msc की फाइल्स पे तो नहीं बात करूंगा, बट काफी सारी एक्सटेंशन होती हैं, कई तो हमारे फाइल्स आती हैं जिसके ऊपर एक्सटेंशन ही कोई नहीं होती, तो सबसे पहले तो हमें फाइल टाइप पता लगाना पड़ता है फाइल से कि इसकी एक्सटेंशन क्या है या किसके लिए बनी, वो किसके लिए है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये केस हमें देखने को मिलता है। तो मैं सिंपल MSc की कोई खास एग्जांपल नहीं दे सकता, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है कि मुझे मैलवेयर एनालिसिस के अंदर प्रोफेशनली काम किए हुए। लास्ट टाइम मैंने तकरीबन 6-7 माह पहले काम किया था मैलवेयर एनालिसिस में प्रोफेशनली, और मैंने लॉग्स एनालाइज किए थे, जिसमें सॉक के अंदर मेरी जॉब थी बेसिकली, और मुझे वहाँ मैलवेयर एनालिसिस करने थे, तो मुझे वहाँ पे काफी सैंपल्स देखने को मिले। MSc में भी यहाँ से गुजरा हूँ कभी, कभी कोई याद नहीं रखा मैंने, तो मैं ऑनेस्ट रहूंगा इस बारे में, मैंने कभी याद नहीं रखा कौन सा सैंपल मेरे यहाँ से गुजरा है। एनालाइज करने है, रिपोर्ट बनानी है, सबमिट करवा देनी है, जान छुड़ाओ अपने। Second question, what's the concept of fileless malware? Like, as an analyst and Hanson in this field, do you define this? Yes, one thing, fileless malware exist करते हैं। Second thing, काफी ज़्यादा एडवांस है। थर्ड थिंग, बात करना भी इलीगल है इसके ऊपर, तो हम इस तरह क्लास के अंदर इस पे बात नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन एडवांस मैलवेयर एनालिसिस क्लास पे अगर हमारी कोर्स चलता रहे तो इसके आखिर में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं वैसे। इसके ऊपर अगर आप मजीद जानना चाहते हैं ना, तो क्राउड स्ट्राइक के ऊपर इसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ है। आप वहां से फाइललेस मैलवेयर के ऊपर मैं तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन क्राउड स्ट्राइक इसको दे सकता है जवाब। तो उनका एक आर्टिकल है, बड़ा इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसको जाके पढ़ें एक दफा। जल्दी से इंस्टॉल हो गया तो कैसे पता चलेगा? आपके पास मैलवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि बिट डिफेंडर। बिट डिफेंडर विंडोज के लिए बेस्ट मैलवेयर जी, ये मेरा ही है, मुझे लग जाएगा ये मेरा ही अकाउंट है। सर अगर कोई मैलवेयर गलती से इंस्टॉल हो गया है तो कैसे पता चलेगा? होवर ओवर मैसेज टू पिन इट। ओके, अगर कोई मैलवेयर गलती से इंस्टॉल हो गया तो आपके डिटेक्टर्स होते हैं। उन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर से तो आप क्या करते हैं, आप डिटेक्ट कर लेते हैं। वो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो स्टैटिक एनालिसिस की भी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले जो वो डिटेक्शन के लिए यूज करेगा वो ये स्टैटिक एनालिसिस की टेक्निक्स होती है। उसकी फाइल हैश निकालेगा, देखेगा कि उसके डेटाबेस में इस तरह की हैश तो नहीं पड़ी हुई, कि पहले से उसे पता हो कि माना करा है कि हैश तो ये है, अभी जो सॉफ्टवेयर मुझे सेंड किया गया है इसमें भी हैश सेम है। तो अगर मैलवेयर माना करा है कि और आपके सैंपल की हैश सेम होती तो वो उसको फॉर्म से सैंपल को डिलीट कर देगा। Zul, happy to connect. Why not? Send me your connection report. Anyone can send me the connection request. This is my LinkedIn. हनी बैजर अब्दुल्ला जैगम ने भी आपके सामने शेयर किया है, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं पर्सनली भी इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। This is my LinkedIn. You all guys can connect with me over there. सर वायरस टोटल कितने परसेंट तक सही है वायरस डिटेक्ट करने के लिए? वायरस टोटल मैलवेयर डिटेक्शन के अंदर जो मेरे मुताबिक अगर आप पूछो तो उसके रिजल्ट 80% ही एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि मैं उसके जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है।
वायरस टोटल सबसे बड़ा डेटाबेस रखता है अब तक मैलवेयर्स का, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल यूजर भी इसको यूज करता है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डेटाबेस तक वायरस टोटल के पास है। इवन कि पेड कंपनी से भी ज्यादा डाटा वायरस टोटल के पास पड़ा हुआ है। लेकिन वायरस टोटल के पास जो डाटा है वो सारा का सारा कम्युनिटी बेस्ड है। तो कम्युनिटी बेस्ड डेटाबेस में कई दफा आपके पास, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉल्स फ्लैग्स आते हैं। तो फॉल्स फ्लैग के ऊपर इसकी डिटेक्शन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। डायनामिक टेस्ट, और हाँ फाइन है उसके लिए। हाँ, अगर अर्जेंट आपने टेस्ट करना है तो डायनामिक टेस्टिंग वगैरह के लिए फाइन है। और डायनामिक टेस्टिंग के लिए आप वैसे वो भी यूज कर सकते हो, एनी रन भी यूज कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो गुड। मैं एनी रन को सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ इसके लिए। In the last class, you said if there is a botnet, there are organization who will instantly know that. What do you mean by that, and who are these organizations? These organizations are called, I मैंने कैसे करूँ, हाँ, companion users joined. ओके, companion मेरी डिवाइस तो नहीं ना है ये, बस ठीक है। मैं बताता हूँ रीसिक्योरिटी। रीसिक्योरिटी कंपनी है, resecurity.com पे जाके आप इसको देख सकते हो ये कंपनी करती क्या है। इनके पास है थ्रेट एनालिसिस पैनल्स। थ्रेट एनालिसिस में क्या है, इनकी टीम्स हैं जो पता लगाती हैं। आईओसीज हैं इनके पास, मॉडर्न आईओसीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिटेक्शन करती हैं और लॉक करती हैं बॉटनेट एक्टिविटीज को। इनके पास कुछ एडवांस टैक्टिक्स हैं, बॉटनेट डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू वो बॉटनेट्स को डिटेक्ट करते हैं। ये कैसे डिटेक्ट करते हैं वो उनका एक ट्रेड सीक्रेट है, क्योंकि मैं उनका पार्टनर हूँ तो मैं बता नहीं सकता, बट या दे डू। बट देर आर कंपनीज हु एग्जैक्टली नो कि आपके सिस्टम में कितने बॉटनेट्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। शायद आपको भी इस बारे में ना पता हो। दे नो मोर देन यू। दैट्स देयर ट्रेड सीक्रेट। दैट्स व्हेन दे बिकम मार्केट कॉम्पिटिटिव। वो मार्केट विन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अलावा किसी को नहीं पता। एंड री सिक्योरिटी नोज द बेस्ट वे टू डिटेक्ट आपके सिस्टम में कितने बॉटनेट्स हैं। मैं खुद उस कंपनी का हिस्सा हूँ, तो किससे पूछ रहे हो? गलत बंदे से पूछ रहे हो भाई। हम अपना ट्रेड सीक्रेट रिवील कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। Even if the botnets are highly sophisticated, yes, even if they are highly sophisticated, they will still find it out. It's a botnet. Unless it's an alien type of software, we will be able to detect it. As long as it's a botnet. बॉटनेट की एक्टिविटी से पता लगता है वो बॉटनेट है। बिहेवियरल एनालिसिस सबसे ज्यादा बड़ा एक सोर्स होता है मैलवेयर को पता लगाने का। बिहेवियरल एनालिसिस, किसी ने बिहेवियर्स के ऊपर स्टडी किया हो तो। What hackers or malware developers do after getting a lot of accounts? We log it and we create websites such as Have I Got Pwned? What if C2s run through Telegram bots? इससे अच्छा क्या होगा, यानी नेकी और पूछ पूछ। ओके गाइस, उम्मीद है कि आप सबके सवाल हो गए होंगे ख़त्म। अगर आप लोगों के सवाल नहीं हैं मज़ीद तो हम क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। किसी का और मज़ीद में से सवाल हो तो वो पूछ सकता है, और वरना हम इस क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम विंडोज़ के साथ स्टैटिक एनालिसिस करेंगे और शायद डायनेमिक एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा मेरे ख्याल में। मैं उन्हीं को ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा कि वो कट पेस्ट करके किसी भी तरह से आपको सेंड कर देंगे। मीडियम का लिंक मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे 2 मीडियम के लिंक्स हैं, एक ये, और मैं एक दफ़ा इसको रीलोड भी कर लेता हूँ। इफ इट स्टिल वर्क्स, यस इट स्टिल डज। और अगर मैं यहाँ से इसकी आईडी चेंज कर दूँ तो फिर ही काम करेगा।
एंड नो इट डिड डोंट वर्क। ये बेसिकली उसी पे रिडायरेक्ट कर देता है, तो ठीक है, आप इसे यूज़ करें। और अगर इन केस ये फ्यूचर में चलना बंद कर दे लिंक, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने बस 32 ख़त्म करना है, बस ये दोनों लिंक अपने पास सेव करने हैं। वैसे मेरा अकाउंट जो है वो ये है, मैं मीडियम का, आप यहाँ पे किसी भी टाइम विजिट करके स्टडी कर सकते हैं। ये मेरा मीडियम है, आप किसी भी टाइम इस पे विजिट करके मेरा कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ सकते हैं। जी ये सब फ्री है, कोई पैसे नहीं लेता मैं इसके, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। विंडोज़ के लिए जो एनालिसिस है, स्टैटिक एनालिसिस, उसके पे मैंने आर्टिकल लिख के पहले से अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपका मेरे से पढ़ने का दिल ना करे और आपको क्लास में आने को दिल ना करे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आप अगली क्लास में आते हो तो मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, तो मजे करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मीटिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।